Hello dear all, welcome to my YouTube channel. Today I have for class 12 the recently released CBSE sample paper of English Core class 12. So coming to the literature part, we will be taking up the literature part, that is part A literature from the sample paper, which carries 20 marks. So starting with the first question, that is, and this basically, let me tell you one thing, that this particular part A, they are all MCQ questions in part A, and they are three questions. That the literature portion starts from third, question number 3. It's question number 3, 4 and 5. Question number 3 carries 8 marks, 4 carries 4 marks, and the fifth one carries 8 marks. And there is choice of the questions in all the three questions of literature part A. So beginning with question number 3, literature, as you can see on the screen, please follow as I read the extract. That is, extract is a portion taken from your passage, a passage taken from your text, that is prose, and we start with it. First, food is more important for survival. Now this question says that you read the extracts given below and attempt any two of the three given by answering the questions that follow. So you are given 3 passages or 3 extracts in this particular question, question number 3, and you have to attempt only 2. And each passage or extract is carrying 4 marks each. So now we start. Food is more important for survival than an identity. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Say a group of women in tattered saris, when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. Children grow up in them, becoming partners in survival. And survival in Simapuri means rag picking. Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof. But for a child, it is even more. Now, the question number 1, which is there in this, asked from this extract, is the phrase transit homes refer to the dwellings that are number A, hygienic, unhygienic, B, inadequate, C, fragile, that means delicate और जो weak होता है delicate होता है, and D is temporary. तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन करेक्ट है आपका, that is transit का जो मतलब होता है that is temporary. So option D is correct. The second question, identify the figure of speech used in the sentence garbage to them is gold. आपको बोला जा रहा है कि इसमें से आइडेंटिफाई करो ये जो गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है. तो हाइपरबोली है. हाइपरबोली का क्या मतलब होता है, एग्जैजरेशन, किसी चीज़ को जो है जैसे बढ़ा कर बोलना. जैसे एग्जैजरेशन हम बोल देते हैं, जैसे हम कहते हैं कि मैंने तुम्हें 1000 बार बोला है करने के लिए, कोई काम बोला आई हैव टोल्ड यू 1,000,000 टाइम्स, राइट. आप एम्फोसिस देकर बोल रहे हैं, कुछ चीज़ को पर जोर देकर बोल रहे हैं, उसे कहते हैं हाइपरबोली. ओके, देन नेक्स्ट इज सिमिली. सिमिली होता है जहाँ लाइक एज यूज़ करते हैं. देन है सिनेक्डिक. सिनेक्डिक का मतलब क्या होता है, दिस इज अनदर फिगर ऑफ स्पीच विच इज़, जिसमें जो है एक जो पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एज अ होल. जैसे हम लोग कहते हैं कि इंग्लैंड लॉस्ट द मैच, उसका मतलब है कि इंग्लिश टीम जो है, पूरी इंग्लिश टीम हैज़ लॉस्ट द मैच.
So a part is represented as a whole. Then is personification. Personification is given the identity of a person. तो इसमें से जो फिगर ऑफ स्पीच जो यूज होगा काबिज टू देम इज गोल्ड में, वो क्या है? हाइपरबोली. दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट. देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज चूज द टर्म विच बेस्ट मैचेस द स्टेटमेंट. फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी. इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इमोरलिटी, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन या एम्बिशन. देखो अब ये है फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, मतलब जीने के लिए फूड बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो इसमें क्या आ जाएगा? दैट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ नेसेसिटी. नेक्स्ट इज व्हाट डज एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट मीन. इसका क्या मतलब होता है? एक्वायर्ड द प्रपोर्शन. एक्वायर्ड का मतलब होता है अटेन्ड, गॉट, राइट. सो अटेन द प्रपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट. दैट मीन्स इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका सी वाला, रैग पिकिंग. कौन सा, इधर किस प्रोफेशन की बात करें, किस आर्ट की बात करें? रैग पिकिंग. तो रैग पिकिंग हैज़ अटेन्ड द पोजिशन ऑफ अ स्किल, राइट. तो आपका सी पार्ट इज करेक्ट. नेक्स्ट इज we will come to the next passage, that is B, that they had merely heard that a Mahatma. This passage is from Indigo. The first one was this was which passage? From Lost Spring. Now the second passage or the extract is from Indigo. They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from the fear of the British. The officials felt powerless without Gandhi's cooperation. He helped them regulate the crowd. He was polite and friendly. He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians. The government was baffled. The prosecutor requested the judge to postpone the trial. Apparently, the authorities wished to consult their superiors. अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो है द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस, बिकॉज ऑफिशियल्स को लगा कि वो नहीं कर सकते कुछ भी. ए इज़ ऑफ गांधीज रिफ्यूज़ल टू कोऑपरेट विद देम, ऑफ गांधीज पोलाइट एंड फ्रेंडली बिहेवियर, इस करके क्या वो पावरलेस फील कर रहे थे. और थर्ड इज़ द क्राउड वॉज लिसनिंग ओनली टू गांधी, एंड फोर्थ इज़ द क्राउड वॉज गेटिंग वायलेंट. क्योंकि उसमें लिखा था ना कि गांधी जी ने हेल्प किया था क्राउड को कंट्रोल करने में. तो इसका जो ऑप्शन आएगा सी, दैट इज़ द क्राउड वॉज लिसनिंग ओनली टू गांधी. आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, इट वॉज ओनली लिसनिंग टू गांधी, yet he could only control the crowd. Next is the demonstration proved that the policies of the British had failed. B, dread instilled in the dread hota hai dar, instilled in the hearts of Indians had begun to lessen. C, dealings with the Indian citizens had been unsuccessful. And D, might of the British had not been understood by Indians. इसमें जो आपका कौन सा आएगा? द डेमोन्स्ट्रेशन जो प्रूव क्या कर रही थी कि जो ड्रेड था, डर था जो इंडियंस के अंदर था, वो कम हो गया था. सो बी पार्ट, ड्रेड इंस्टिल्ड इन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस हैड बिगन टू लेसन. इसलिए वो अब वो जो है मिलकर जो डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे थे. नेक्स्ट इज विच स्टाइल फ्रॉम दोज गिवन बिलो इज बीइंग यूज्ड बाय द ऑथर व्हेन ही सेज apparently the authorities wish to consult their superiors. अब जब ये चीज़ बोलता है तो इन्होंने पूछा है कि फ्रॉम विच स्टाइल फ्रॉम दीज गिवन बिलो. आपको दोज गिवन बिलो कुछ चीज़ें दी गई हैं कि ये ह्यूमरस है, कुछ हंसा देने वाला, या ड्रामेटिक है, या तीसरा है सरकास्टिक. सरकास्टिक मीन्स जब हम कुछ कहते कुछ और हमारा मतलब कुछ और होता है. एंड परसुएसिव. तो इन चारों में से हमारी जो है मतलब परसुएसिव मीन्स रिक्वेस्ट करने वाली कोई ऐसी चीज़ है. तो जो बोली गई है व्हेन ही सेज अपेरेंटली द अथॉरिटीज़ विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स.
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज sarcastic. वो sarcastically ये बात कहता है. नेक्स्ट इज we come to the next question, that is Gandhiji's behavior towards the British prior to the proposal of postponement of the trial was that of. जो गांधी जी का बिहेवियर था ब्रिटिश की तरफ वो कैसा था बिफोर ये पोस्टपोनमेंट ऑफ ट्रायल के, कैसा था बिहेवियर? तो इंडिफरेंस वाला नहीं, काम एक्सेप्टेंस, इग्नोरेंस ऑफ consequences means results, या पोलाइट हेल्पफुलनेस. इट वॉज ऑफ काम, बहुत कामली उन्होंने डील किया था, बहुत एक्सेप्टेंस के साथ, मतलब तो दैट इज हिज बिहेवियर वॉज दैट ऑफ काम एंड एक्सेप्टेंस. नाउ नेक्स्ट द थर्ड पैसेज. इनमें से 3 पैसेजेस हैं, उनमें से आपने 2 करने हैं, रिमेंबर दिस. एंड थर्ड पैसेज इज फ्रॉम शुड विजार्ड हिट मॉमी. जो वॉज starting to fuss with her hands and look out of the window at the crack of day that showed under the shade. She thought the story was all over. Jack didn't like women when they took anything for granted. He liked them apprehensive. Apprehensive means थोड़े डरे हुए. Hanging on his words. Now, Joe, are you listening? Yes, because this is very interesting, Roger Skunk's mommy said. What's that awful smell? What? And Roger Skunk said, it's me, mommy. I smell like roses. And she said, who made you smell like that? And he said, the wizard. And she said, well, of all the nerve, you come with me and we are going right back to the very awful wizard. चूज़ द ऑप्शन दैट बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट्स. पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि ऐसा ऑप्शन चूज़ करो जो बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट करता है द रेलिवेंट ट्रेट्स ऑफ जो एंड जैक, कि जो एंड जैक का कैरेक्टर कैसा था, ट्रेट्स क्या थी उनके कैरेक्टर की रिस्पेक्टिवली, बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट प्रोवाइडेड, बेस्ड ऑन द पैसेज विच इज़ गिवन. अब पहला ऑप्शन है आपका क्यूरियस एंड इरिटेबल, मतलब जो कैसी थी एंड वो जो उसके फादर थे जैक वो कैसे थे. नाउ फर्स्ट इज क्यूरियस एंड इरिटेबल, बी इज पेशेंट एंड इरिटेबल, क्यूरियस एंड लेथार्जिक, लेथार्जिक होता है लेजी, एंड पेशेंट एंड लेथार्जिक. तो जो कैसी थी वो शी वॉज क्यूरियस एंड जैक वॉज इरिटेबल, राइट? सो इट इज़ द फर्स्ट ऑप्शन ए, दैट इज क्यूरियस एंड इरिटेबल. Next is Joe was starting to fuss with her hands. This means that Joe was मतलब कुछ कर ही जा रही थी अपने हाथों के साथ. तो A means feeling anxious, B is getting restless, C is feeling lazy and D is fighting sleep. And इसका क्या ऑप्शन आएगा? That is she was getting restless. B आएगा ऑप्शन that is correct, getting restless. Now the next one is here, next question, Joe, what indicated what she was feeling? Pick the option that correctly states these feelings. मतलब ये feeling जो what word बोला है जिस वजह से ये क्या feeling express करते हैं. ऑप्शंस हैं, इनमें से आपने बताने कौन से ऑप्शन करेक्ट है. टेरर, सरप्राइज, टेरर होता है डर, सरप्राइज, इग्नोरेंस ध्यान नहीं देना, डिसप्लेजर मीन्स ना खुश होना, जॉय खुशी, अप्रूवल मीन्स सहमति, राइट? सो इनमें से आप क्या सोचते हो, फर्स्ट एंड थर्ड है, सेकेंड एंड फोर्थ है, या वाइस वर्सा फिफ्थ एंड सिक्स्थ है, क्या है? तो उन्होंने बोला 1 and 3, 2 and 4, 3 and 6, 4 and 5. इसमें आपका आएगा 2 and 4. दैट इज़ एक तो सरप्राइज, बहुत सरप्राइज देते भी कहती वॉट, एंड डिसप्लेजर, उसको जो उसकी मदर को बहुत गुस्सा आता है, मतलब शी इज़ नॉट हैप्पी विद इट. डिसप्लेजर इज शी इज़ नॉट हैप्पी विद द स्मेल ऑफ रोजेस. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन, मॉमी सेज वेल ऑफ ऑल द नर्व, दिस रिवील्स हर. तो वो ऐसा बोलती है तो उसका ये क्या शो करता है? रिवील मीन्स क्या शो कर रहा है? अप्रूवल, सरप्राइज एंड प्लेजर, प्लेजर, होप एंड अप्रूवल, और बेट्रियल,
डिसअप्रूवल नहीं मानती और हर्ट फील करती है। एंड डी ऑप्शन है शॉक, एंगर एंड डिसअप्रूवल। मीन्स वो शॉक्ड होती है, एक तो गुस्सा भी होती है, एंगर एंड डिसअप्रूवल भी होता है, राइट, वो नहीं मानती। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, एंड इफ you like my video, kindly like, share and subscribe.